Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss some objective type questions of chapter Python libraries. So let's start with our first question. Which operator is used in Python to import all modules from a package? कि अगर आपका कोई पैकेज है उसमें से आपको सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं, सो फॉर दैट विच ऑपरेटर इज टू बी यूज्ड? सो फॉर दैट वी आर हैविंग स्टार ऑपरेटर. ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिकली समझेंगे. लेट मी क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. नाउ सी हियर बेटा, टू इंपोर्ट एनी फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम अ मॉड्यूल देयर आर थ्री मेथड्स. फर्स्ट वन इज यूजिंग import statement. If I am writing import math, that means मैंने math module को import कर लिया. अब इस math module में जितने भी मेरे पास inbuilt functions हैं, that we can use, but the syntax will be name of the module dot name of the function or the name of a variable. Just call the function factorial of math module. So what will be the syntax for this? You have to write the name of a module, which is math, dot name of the function which you want to call. Factorial suppose मुझे find out करना है of 6. ठीक है, that means जो मेरा math module है उसमें जितने भी मेरे पास functions हैं, जितने inbuilt variables हैं, that are imported in your program now. And to import that or to use that, you have to just write the name of a module dot name of a function or variable. ठीक है. Now let me just restart the shell. Yes. अब second method is from math import. Let's suppose pi and comma factorial I am writing. That means from math module उसमें जितने functions हैं, जितने variables हैं, I have imported only one function and one variable, factorial and pi. So to use the variables or syntax means function, the syntax will be, you just have to write the variable name. Or here I am just writing the function call statement to print the factorial of a number. अब मुझे वो math dot करके syntax लिखने की जरूरत नहीं है, because अगर हम from statement से अपने मॉड्यूल को import करेंगे तो उसके लिए मुझे just क्या लिखना है, function का name और variable name. ठीक है. अब अगर मैं suppose यहाँ पर लिख देते हैं, let's suppose e. अब e वेरिएबल जो है मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया, तो देन इट विल शो यू द एरर. थर्ड मेथड इज, लेट मी रीस्टार्ट द शेल अगेन. इससे क्या होगा, जो हमने पिछले जो ऑपरेशंस अप्लाई किए, मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए, वो अब इस टाइम पर इस शेल में वो आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे. सो हियर आई एम राइटिंग फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार. दैट मीन्स मैथ मॉड्यूल में जो कुछ भी मैंने सब इंपोर्ट कर लिया. अब मैंने फ्रॉम स्टेटमेंट से इंपोर्ट किए, तो दैट मीन्स अगर मैं सिंपल ई लिख दूं, सिंपल पाई लिख दूं, तो दैट आल्सो विल बी करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. अब हमारा क्वेश्चन क्या था फर्स्ट, विच ऑपरेटर इज यूज्ड इन पाइथन टू इंपोर्ट ऑल मॉड्यूल्स फ्रॉम अ पैकेज? सो फॉर दैट वी हैव द ऑपरेटर स्टार. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which file must be the part of folder containing Python module files to make it importable Python package? See, Python package को कैसे create करते हैं, how to use that. This I have prepared a detailed video on this topic. I will provide you the link also of this video in my description box so that you can go through with the detail. And the file which we have to use is _nh_.py. This means ये एक मेरी empty file होती है. इससे जो मेरे मॉड्यूल्स हैं वो मेरे इंपोर्टेबल पैकेज बन जाएंगे. मीन्स अब मैं उसको एज अ पैक मीन्स उसको इंपोर्ट हम लोग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन पाइथन विच इज द करेक्ट मेथड टू लोड अ मॉड्यूल मैथ? अगर आपने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो आप उसको कैसे, सिंटेक्स क्या रहेगा? व्हाट विल यू राइट? इंक्लूड मैथ? नो, इंपोर्ट मैथ वी विल राइट. ठीक है, बिकॉज हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच
ये हमारा C++ में सिंटेक्स हुआ करता था यूजिंग मैथ? नो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, import math. Now next question, which is the correct command to load just the TMPC method? कि मेरे पास एक TMPC मेथड है, मुझे उसको इंपोर्ट करना है और जस्ट द TMPC मेथड मीन सिर्फ उसी मेथड को, और आपको मेथड का नेम क्या गिवन है बेटा? TEMPC फ्रॉम अ मॉड्यूल कॉल्ड यूजेबल. यूजेबल मॉड्यूल का नेम क्या है? यूजेबल. तो सिंटेक्स क्या होएगा बेटा? फ्रॉम, जो अभी हमने मैथ मॉड्यूल के साथ किया था, आफ्टर दैट नेम ऑफ अ मॉड्यूल, तो दैट इज यूजेबल, इंपोर्ट फंक्शन का नेम दैट इज TEMPC. ठीक है, इफ यू कैन चेक द सिंटेक्स ऑल्सो. See, from name of a module, import name of a function. So here it's from usable, import TEMPC. This is the correct option of this question. Now move on to the next question. What is the extension of Python libraries module? जो मेरे Python libraries हैं, उनके जो modules हैं, modules are nothing but your Python code जो होता है उसका module बोलते हैं, और उनकी extension क्या होगी बेटा? .py. जो मेरे पाइथन फाइल्स होती है, उनकी जो प्रोग्राम्स आप लोग लिखते हो, उनकी भी एक्सटेंशन क्या होती है? .py. एंड पाइथन मॉड्यूल्स आर जस्ट सिंपल योर पाइथन कोड फाइल्स, तो उनकी एक्सटेंशन भी क्या होगी बेटा? .py. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम मॉड्यूल फंक्शंस जनरेट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर? कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल का, वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जनरेट करेगा. ठीक है, तो now let's import the random module. I will show you practically each and everything. ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बताया. I don't believe in this. ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकली शो करेंगे. अब फर्स्ट फंक्शन देखो क्या है? रैंडम. रैंडम मॉड्यूल में ही मेरे पास कौन सा फंक्शन है? रैंडम. और इसका मेन टास्क क्या है बेटा? इट विल जनरेट अ रैंडम वैल्यूज बिटवीन 0 to 1. जो 0 to 1 की रेंज में वैल्यूज होंगी, दैट इट विल डिस्प्ले इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1. जो मेरी मीन्स लोअर लिमिट है, इसको ये इंक्लूड करेगा बट 1 को इंक्लूड नहीं करेगा. ठीक है, देयर आर सो मेनी वैल्यूज बिटवीन फ्रॉम 0 to 1, तो इट्स रेयर चांस कि वो 0 को प्रिंट करे, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी. अब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूंगी, अगेन इट विल जनरेट अ डिफरेंट रैंडम नंबर. और ये किस में जनरेट कर रहा है बेटा? पॉइंट्स में, दैट मीन्स फ्लोट में. अब नेक्स्ट फंक्शन चेक करेंगे. नेक्स्ट कौन सा है? randint. random.randint. It will generate randomly integer values between the two limits, and it will include both lower as well as your upper limit. Suppose here I am writing 5, 10. तो 5 से 10 के बीच में integer values it will print randomly, including 5 और 10. ठीक है, let me just shorten this range so that ये बाउंड्री वैल्यूज को भी शो कर दे. 5 और 7 कर दिया, तो एज यू कैन सी 5 भी इंक्लूड हो रहा है, 7 भी हो रहा है और 6, 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगी. ठीक है, दिस टाइम 6. तो जो मेरा randint फंक्शन है, ये मेरा फ्लोट नंबर्स जनरेट नहीं करेगा. नेक्स्ट फंक्शन इज योर यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म फंक्शन क्या करेगा? इट विल जनरेट फ्लोटिंग नंबर्स बिटवीन द टू. सपोज हियर आई एम राइटिंग random.uniform 3, 7. It will also generate a random number between this range, including 3, excluding 7. 7 को वो include नहीं करेगा, but 3 को include वो करेगा. ठीक है? I have prepared a detailed video on the random functions also. That link also I will provide you in the description of this video. So the correct answer is random, this A option, and then C part, that is uniform. Now move on to the next question. Which of the following random module functions generate an integer value? Integer value के लिए random function? No. randint function will generate the integer values between the range. Uniform function will also generate the float values. Now next question. The uniform function is a part of which module? अभी हमने किया बेटा, कौन सा मॉड्यूल है? random module. And you have to use small alphabet, small letters. random का R कैपिटल आपने नहीं लिखना है, अदरवाइज
वो आपका रेंडम मॉड्यूल कंसीडर नहीं होगा, बिकॉज पाइथन इज माई केस सेंसिटिव लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स which needs to be imported for the following function. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में काफी आते हैं कि आपको 2 फंक्शंस दे देंगे and they will ask you to which module is to be imported for this. And for sine module we are having math function. For sine function we are having math module, and for random function we are having random module, and for log function we are having math module, and for power function also we are having math module. Now next question, what would be the output produced by the following code? ये आपको कोड फ्रेगमेंट गिवन है and you have to tell the output of this. अब कोड ध्यान से देखो, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या करा है, प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 5 into 4 20 into 3 60 into 2 120. तो फैक्टोरियल तो 5 का 120. तो विल 120 बी माई आंसर? नो. रीजन बीइंग दैट अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फ्रॉम स्टेटमेंट, अब मैंने जो फैक्टोरियल फंक्शन है दैट आई हैव इंपोर्टेड विद फ्रॉम स्टेटमेंट, तो उसके लिए मुझे मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इट विल शो यू द एरर. लेट मी जस्ट शो यू दिस प्रैक्टिकली. शेल को रिस्टार्ट करते हैं. फ्रॉम स्टेटमेंट को भी हटा देते हैं. अब हमने क्या करा, मैथ मॉड्यूल से फैक्टोरियल को इंपोर्ट करा और फिर अब हम प्रिंट करा रहे हैं मैथ डॉट फैक्टोरियल. एंड किस नंबर का फैक्टोरियल बेटा, 5. तो नाउ इट विल शो एरर, बिकॉज अगर हम इंपोर्ट मैथ लिखते तो ये करेक्ट होता मैथ डॉट फैक्टोरियल, तो इसकी जगह मुझे जस्ट क्या लिखना होगा, सिंपल फैक्टोरियल. तो देन इट विल शो यू द आंसर. सो फॉर दिस क्वेश्चन इट्स एन एरर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस. जो हमारे पास नेम स्पेस है बेटा, वो मेरा कौन सा रूल फॉलो करता है, लेग्बी रूल, ठीक है. एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज L stands for local, E stands for enclosing. इनकी प्रायोरिटी भी इसी केस में होती है. G stands for global and B stands for built-in. अब क्वेश्चन देखो, ग्लोबल नेम स्पेस, बिल्ट इन नेम स्पेस, लोकल नेम स्पेस भी है, बट क्या मेरे पास कोई पब्लिक नेम स्पेस है, नहीं. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस. पब्लिक नेम स्पेस इज माई invalid namespace. Now move on to the last question of this. What will be the output of the following code shown below? अब random function से मैंने choice function को कॉल किया और choice function देखो क्या करता है बेटा, import random, ठीक है. अब मैं choice function क्या करेगा, ये आपकी list हो या string हो या tuple हो, उसमें से कोई भी एक random value आपको as a result show करेगा. Suppose here I am taking a list 11. Suppose I am taking this numbers. ठीक है. फिर मैंने लिखा print random dot choice और ब्रैकेट में लिस्ट पास कर दी. इसने कोई भी एक रैंडम वैल्यू आपको पिक करके देगा. It's strange कि every time it is print 3 times it prints the same, बट ये रेंडमली आपको जो है कोई भी डिफरेंट वैल्यू को प्रिंट करके देगा. इन केस ऑफ स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग लिखते हैं हम. स्ट्रिंग क्या गिवन है बेटा, रैंडम डॉट चॉइस सन. तो अगर मैं यहां पर लिख दूं रैंडम डॉट चॉइस सन, ठीक है, तो ये आपको SUON कोई भी एक रैंडम कैरेक्टर जनरेट करके देगा. सो इसके ऑप्शंस देखते हैं. विल इट जनरेट सन, नो. यू, नो. आइदर S और U और N. इन तीनों कैरेक्टर्स में से randomly it will generate any character. That's all for the objective type questions of Python libraries. I hope you like the video and understood the concepts. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel
and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.